آپ ہماری اسکرین پہ فوکس کریں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کتنے لوگوں کے ویزاز اس ٹائم اپلائی کیے ہیں. زبردست ہو گیا. یہ ہر چیز ایک لیجٹ طریقے سے بنائی ہوئی ہے ہم نے. یہ کور لیٹر بیسکلی ایک بزنس مین کا ہے جس کا کور لیٹر ہیڈ پہ ہم نے بنایا ہوا ہے. کمپنی کا ہی لیٹر ہیڈ ہے, اس کے اوپر کمپنی کا ہی لیٹر ہیڈ. اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ٹریول پلانس ہیں ہمارے, آپ دیکھ لیں ڈے ٹو ڈے ہر چیز ہم نے بنائی ہوئی ہے, ان کو شو کروائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہوٹل بکنگس لگوا رہے ہیں, ڈمی نہیں لگا رہے ہیں, ریزروڈ لگا رہے ہیں صرف آپ کے ویورز کے لیے. جو بھی بندہ فیملی کیس لے کے آئے گا صرف ہسبینڈ وائف کے پیسے ہم چارج کریں گے ان کی فائل کی, اور باقی جتنے بھی ان کے ساتھ چلڈرن ہیں, چاہے وہ 18 سال کے ہیں, چاہے وہ 14 سال کے ہیں, چاہے وہ 15 سال کے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ 14 سال سے نیچے ان کی فیسز وغیرہ پے نہیں ہوتی, ہر چیز نہیں ہوتی, ان کا کوئی بھی ورک نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں چاہے وہ 25 سال کے بھی ہیں نا, اگر وہ اپنی اولاد کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ان کی تقریباً گیا بالکل ہی آپ کی خاطر ہم ان کی ویزا فی بالکل چارج نہیں کریں گے. آج میں اپنے ویورز کو 2 مین ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے ان کی کبھی بھی ویزا فائل ریجیکٹ نہیں ہوگی. آپ کا آئی ڈی کارڈ, پاسپورٹ, پکچرز, بینک اسٹیٹمنٹ, بزنس NTN, اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب لیٹر چاہیے, آپ کو FRC چاہیے, MRC چاہیے. یہ ڈاکومنٹس لازمی ہیں ہر کنٹری کے لیے. کئی کنسلٹنٹس ایسے ہیں, میں نے کئی کنسلٹنٹس کی کور لیٹرز ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ڈے ٹو ڈے ٹریول پلان بتایا تو ہوا ہے, لیکن وہ ٹریول پلان وہ بنایا ہوا ہے کہ 15 دنوں کے اندر جو کور نہیں کر سکتا وہ بندہ. ہم جو ویزا فائل بنا کے دے رہے ہیں یہ کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, UK, جاپان, یورپ, شینجن کنٹریز جن کو کہتے ہیں, اس کے بعد USA بنا کے دے رہے ہیں. ان ساری کنٹریز کی ہم ویزا فائل تیار کر کے پروسیس کرواتے ہیں. ماشاءاللہ سے UK کے اندر آفس سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے. زبردست ہو گیا. میرے جو پارٹنر ہیں وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں اور وہ اپنا آفس ہمارا سیٹل ڈاؤن کر چکے ہیں. اب یہ سین ہے کہ جو سروسز ہمیں UK سے چاہیے ہوں گی وہ سروسز ہمیں پرووائڈ ڈائریکٹ ملیں گی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں 100% پہ کام کرتا ہوں یا ڈن بیس کام کرتا ہوں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں بھائی جان ہمیں دے اور ہم لگوا کے دے دیں گے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم چیزیں پوری نہ کر سکیں. جو چیز ہم پوری کر سکتے ہیں, جو ہمارے ہاتھ میں ہے, وہ چیز ہم آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی. میرے سے رابطہ کرنے کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں, اس کا رسپانس آپ کو ایز سون ایز پاسبل آ جائے گا. السلام علیکم ویورز, میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ ویس یوٹیوب چینل. 2025 میں باہر جانے کے لیے کیا نئی ویزا اپڈیٹس ہے آج جانتے ہیں اس ویڈیو میں. السلام علیکم سبحان بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عمر بھائی, میں ٹھیک, آپ سنیں آپ کیسے؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک. مجھے یہ بتائے گا کہ 2025 میں کیا نئی ویزا اپڈیٹس ہیں, ذرا لوگوں کو بتائیے گا. سر 2025 کے اندر جو نئی ویزا اپڈیٹس ہیں ان کو لے کے ہم آگے بات کریں گے, لیکن آپ کو ایک مین بات, آپ کو ایک چیز میں بتا دوں. 2025 کے اندر انہوں نے کئی لیبل ورکرز ہیں کینیڈا کے اندر, USA کے اندر, UK کے اندر کئی لیبل ورکرز ہیں جو یورپ یونینس وغیرہ سے ایسوسیٹس تھے, ان کا انہوں نے آ کے کام کرنا UK کے اندر, کینیڈا کے اندر بین کر دی ہے, جس کی وجہ سے ان کو لیبل ورکرز کو ضرورت ہے وہاں پہ اسکل ورکرز کی, لیبل ورکرز کی, نان اسکل ورکرز کی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلی تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی کینیڈا کی, UK کی اور آپ کے USA کی ریشو بہت اچھی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس امپلائمنٹ کی کمی ہے اور انہیں امپلائز چاہیے اپنی کنٹری کے اندر. اور دوسری چیز, بڑی چیز یہ ہے کہ کینیڈا نے اپنا ٹائم 28 ڈیز سے لے کے 21 ڈیز کے اندر کر دیا, مطلب کم کر دیا, مزید کم کر دیا. جہاں سختی آئی ہے وہاں کافی جگہوں پہ نرمی بھی آئی ہے. ایسے ہی ہے. تو مجھے یہ بتائے گا کہ ایک ویزا فائل کیسے بنتی ہے؟ سر ایک ویزا فائل بننے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں نا وہ پراپر اور لیجٹ ہونے چاہیے. ان ڈاکومنٹس کے بارے میں بات کر لیں. اب آپ ڈاکومنٹس لیجٹ دے دیتے ہیں, آپ کے کسی بھی کنسلٹنٹ سے آپ رابطہ کر رہے ہیں, آپ اس کو اپنے ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں. ان ڈاکومنٹس کے اندر کلیئرٹی اس نے بھی شو کرنی ہوتی ہے آپ کے پیپر ورک کے اندر. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کلیئر ڈاکومنٹس دیے ہیں تو اس نے وہ ڈاکومنٹس ویسے کے ویسے ہی لگا دینے ہیں, ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان کو بریف کرنا, ان کو ایکسپلین کرنا, ان کو ایک ریکویسٹ لیٹر کے اندر ہر چیز بتانی, اس کی بایوگرافی, اس کا بایو ڈیٹا, اس کے بزنس کے NTNs وغیرہ کے بارے میں ہر چیز بتانے کے لیے ایک فارمیٹ دیا گیا ہے جو ایمبیسیز دیتی ہیں. اور اکثر ہر ایمبیسی کے اندر یہ ریکویسٹ لیٹر اور ٹریول پلان یوز ہوتا ہے, جس کو آپ نے یوز کر کے ریپرزینٹ کرنی ہوتی ہے اپنی فائل ایک انسپیکٹر کے سامنے. اگر آپ وہ امپریس نہیں اسے کر پائیں گے, وہ کور لیٹر وہ آپ کا دیکھے گا, اگر اس کو اس کے اندر چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی تو آپ کی چیزیں اٹیچ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب آپ نے جو چیزیں لگانی ہیں وہاں وہ پروو ہونی چاہیے کہ آپ یہ جو ڈاکومنٹ لگا رہے ہیں یہ آپ کے ہی ہیں, سب کچھ آپ کا ہے, جہاں آپ ٹریول ہسٹری دے رہے ہیں وہیں آپ جائیں گے. ایک تو پروو ہونی چاہیے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آپ فارمیٹ ہوتا ہے ان کا, اس فارمیٹ کے مطابق ان چیزوں کو اپلوڈ کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کئی چیزیں, جیسے آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ دیا تو بینک اسٹیٹمنٹ کو ایک POF پروف آف فائنینشیل کا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس کے اندر ہر چیز مرج کر کے لگانی پڑتی ہے, ایک سسٹمیٹکلی طریقے سے لگانی پڑتی ہیں. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے آپ کے امپلائی نے آپ کو دی ہے اور وہ آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ ویسے کی ویسے اپلوڈ کر دیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے اندر POF کے اندر اس کے پروف آف فائنینشیل کے جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ مرج کر کے ایک فارمیٹ بنا کے آپ نے اس فائل کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے.
जबरदस्त हो गया। मेन फोकस हमारा भी इसी चीज़ के अंदर होता है कि यार कवर लेटर के अंदर उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस बताई जाएं, हर बंदे की हर चीज़ बताई जाए, क्योंकि नॉन इंटरव्यू जो वीज़ास होते हैं, कई कंट्रीज हैं जो नॉन इंटरव्यूज़ हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ नहीं लेना, तो उन्होंने रिप्रेजेंट जो होना है उस बंदे ने उसके कवर लेटर और रिक्वेस्ट लेटर जिसे कहते हैं उसके थ्रू होना है, उसने खुद जाके नहीं होना रिप्रेजेंट। तो अब हमारे व्यूअर्स को ये बताएगा कि एक वीज़ा फाइल बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, जो बंदा आपको देगा और आप उसको वीज़ा फाइल बना के दे देंगे, और उसके लिए आपके ऑफिस भी आना पड़ेगा या ऑनलाइन आपकी सर्विसेज अवेलेबल हैं, लोगों को बताइएगा। सबसे पहले तो ये बात करते हैं ऑनलाइन सर्विसेज की। अच्छा, आपको लाजमी नहीं है कि आप हमारे ऑफिस के अंदर विजिट करें या आप आएँ कराची से, अगर आप हैं, आप इस्लामाबाद से हैं, तो लाजमी नहीं है कि आपने खुद आना है फिजिकली बाय हैंड आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। आप हमसे रब्ता करें, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स दें, क्योंकि ऑनलाइन ही वो स्कैन होकर अपलोड होने होते हैं, फिजिकली कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमें खुद भी नहीं चाहिए होता। अगर आपने आना भी है तो आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं लेके आना, हमें PDF के अंदर स्कैन फॉर्म के अंदर फाइल चाहिए होती है, वो आप हमें सेंड करें। सेंड करने के बाद हम आपकी फाइल प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे। अब आती है डॉक्यूमेंट्स की बात। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपका ID कार्ड, पासपोर्ट, पिक्चर्स, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस NTN, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर चाहिए, आपका FRC चाहिए, MRC चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी हैं हर कंट्री के लिए। जबरदस्त। जितनी भी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज के लिए लाजमी है डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर से कोई भी डॉक्यूमेंट कम करने की सूरत के अंदर आपका फाइल तैयार करवाना है या वीज़ा अप्लाई करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज़, हमारी तरफ से अब क्या डॉक्यूमेंट्स हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर हम 4 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। एक कवर लेटर, ट्रैवल प्लान। कवर लेटर वो जिसे रिक्वेस्ट लेटर कहते हैं, जिसके अंदर क्लाइंट का हर किस्म का बायोडाटा होता है, जो डॉक्यूमेंट्स उसने दिए होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं इंस्पेक्टर को, और उसके बाद ट्रैवल प्लान होता है। अच्छा, ट्रैवल प्लान के अंदर उमर भाई एक चीज़ होती है, मैंने काफ़ी, मेरे भी क्लाइंट्स हैं, काफ़ी मेरे पास आए हैं मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने कवर लेटर की वजह से उनके रिजेक्शन रेट्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेन जो उनका लगता है ना रिजेक्शन लगता है पर्पस ऑफ कनाडा, पर्पस ऑफ स्टे, ये रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आम हुआ है। वो किस वजह से लगता है, वो ट्रैवल प्लान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसकी जो हिस्ट्री होती है उसके ऊपर, उसकी हिस्ट्री नहीं होती। ट्रैवल प्लान के अंदर बेसिकली ये चीज़ होती है, ट्रैवल प्लान आपका बेसिकली होता है डे टू डे आपने बताना होता है कि आपने क्या क्या चीज़ विजिट करनी है, आपका पर्पस क्या है, उसके अंदर वो क्लैरिटी चाहिए होती है। अब कई कंसल्टेंट्स ऐसे हैं, मैंने कई कंसल्टेंट्स के कवर लेटर्स ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने डे टू डे ट्रैवल प्लान बताया तो हुआ है, लेकिन वो ट्रैवल प्लान वो बनाया हुआ है कि 15 दिनों के अंदर जो कवर नहीं कर सकता वो बंदा, मतलब एक किसी और जगह का है, एक किसी और सिटी का है, किसी और सिटी का, जो 15 दिनों के अंदर वो 15 जो साइट्स हैं वो विजिट नहीं कर सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी वजह से एम्बेसी का इंस्पेक्टर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। आपका ट्रैवल प्लान जो होना चाहिए वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, टाइम टू टाइम वेरी करना चाहिए। तो अब मुझे बताएगा, ये जो आप वीज़ा फाइल बना कर दे रहे हैं, ये किन किन ममालिक की आप बना के दे रहे हैं? सर, हम जो वीज़ा फाइल बना के दे रहे हैं ये कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, जापान, यूरोप, शेंजन कंट्रीज जिनको कहते हैं, उसके बाद USA बना के दे रहे हैं। इन सारी कंट्रीज़ की हम वीज़ा फाइल तैयार करके प्रोसेस करवाते हैं। तो क्या आप, मैंने सुना है लोग बहुत ऐसा करते हैं कि इधर ही वीज़ा कंसल्टेंट जो बंदा होता है इधर बैठा होता है, बाहर कोई उनका सीन नहीं होता या उनकी कोई टीम नहीं होती, तो क्या मुझे लोगों को क्या ऑथेंटिसिटी आप दे रहे हैं कि आपके पास लोग क्यों आए? सर, पहली बात तो ये है कि अब हमारा माशाल्लाह से UK के अंदर ऑफिस सेटल डाउन हो गया है। ज़बरदस्त हो गया। मेरे जो पार्टनर हैं वो वहाँ पे चले गए हैं और वो अपना ऑफिस हमारा सेटल डाउन कर चुके हैं। अब ये सीन है कि जो सर्विसेज हमें UK से चाहिए होंगी वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड डायरेक्ट मिलेंगी, और उसके अंदर श्योरिटी भी आपके सामने रखी जाएगी, हर चीज़ आपको बताया जाएगा, हर चीज़ आपको कही जाएगी। कई अपॉइंटमेंट्स का इशू होता है, वो अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी वो खुद लेके देंगे, कहीं की भी चाहिए होगी। अगर आपको पासेस चाहिए, इन्विटेशंस वगैरह चाहिए तो वो डायरेक्ट आपकी Gmail पे आएंगे, डायरेक्ट वो आपके नाम पे आपके Gmail रजिस्टर्ड करवा के डायरेक्ट वो वहाँ से पासेस वगैरह भी जनरेट करवाएंगे, हर चीज़ आपके सामने विजिबल होगी। ठीक हो गया। तो सुभान भी आप हमारे व्यूअर्स को बताएगा कि अभी तक आप कितने लोगों को बाहर भिजवा चुके हैं? और भाई मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ज़्यादा घुमा फिरा के आपको नहीं बताऊँगा। रेशोज़ मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि 100 के अंदर से 25-30% रेशोज़ होती हैं जो लगते हैं वीज़ास। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% पे काम करता हूँ या डन बेस काम करूँ, क्योंकि लोग कहते हैं भाई हमें दे और हम लगवा के दे देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हम ऐसी बातें करते हैं जो हम चीज़ें पूरी ना कर सकें। जो चीज़ हम पूरी कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, वो चीज़ हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। आप हमारी स्क्रीन पे फोकस करें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितने लोगों के वीज़ा इस टाइम अप्लाई किए हैं। ज़बरदस्त हो गया। और भाई ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर चीज़ एक लेजेंड तरीके से बनाई हुई है हमने। ये कवर लेटर बेसिकली एक बिजनेसमैन का है जिसका कवर लेटर हेड पे हमने बनाया हुआ है, कंपनी का ही लेटर हेड है, उसके ऊपर कंपनी का ही लेटर हेड। ज़बरदस्त। उसके बाद डे टू डे ट्रैवल प्लान्स हैं हमारे, आप देख लें, डे टू डे हर चीज़ हमने बनाई हुई है, उनको शो करवाई हुई है, ठीक है। उसके बाद नीचे ये देखें, हम रिजर्व्ड
होटल बुकिंग्स लगवा रहे हैं, डमी नहीं लगा रहे हैं, रिजर्व्ड लगा रहे हैं। कोई भी बंदा अगर बाहर जाना चाहता है, आपसे वीजा फाइल बनवाना चाहता है, तो मिनिमम क्या चार्जेस होते हैं? और भाई सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आप चार्जेस वगैरह छोड़े, 2025 की नई आप अपडेट हमसे भी लें और नई ऑफर हमसे भी लें। सिर्फ आपके व्यूवर्स के लिए जो भी बंदा फैमिली केस लेके आएगा, सिर्फ हस्बैंड वाइफ के पैसे हम चार्ज करेंगे उनकी फाइल की, और बाकी जितने भी उनके साथ चिल्ड्रन हैं, चाहे वो 18 साल के हैं, चाहे वो 14 साल के हैं, चाहे वो 15 साल के हैं। लोग कहते हैं कि 14 साल से नीचे उनकी फीसेस वगैरह पे नहीं होती, हर चीज़ नहीं होती, उनका कोई भी वर्क नहीं होता। मैं कहता हूँ चाहे वो 25 साल के भी हैं ना, अगर वो अपनी औलाद के साथ जाना चाहते हैं तो उनकी तकरीबन गया बिल्कुल ही आपकी खातिर हम उनकी वीज़ा फ़ी बिल्कुल चार्ज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उनकी जो एम्बेसी की फ़ीस है वो हम चार्ज करेंगे, और हस्बैंड वाइफ की सिर्फ हम कंसल्टेंसी की अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे, उसके अलावा हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे। ज़बरदस्त होगा भाईजान। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं इंक्लूडिंग फैमिली, तो सुबहान भाई ने बड़ी अच्छी ऑफर दे दी है कि अगर आप कपल जाना चाहते हैं और आपके साथ बच्चे हैं, तो बच्चे हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री स्पॉन्सर्ड होंगे। ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल स्पॉन्सर्ड होंगे। और जो शादीशुदा हजरात हैं, इनकी शादियां हो रही हैं क्योंकि शादियों का पता सीजन भी है, तो इसमें कोई खास ऑफर देना हमारे व्यूअर्स को? सर इनके लिए हम आपके लिए सिर्फ इनका कपल पैकेज चलवाएंगे। हम पर पर्सन 35,000 रुपीज़ लेते हैं जो हम फाइल कंसल्ट, वो भी सिर्फ आपके व्यूवर्स के लिए हम लेते हैं 35,000, नहीं तो हमारा 50,000 रेट है। हम आपके व्यूवर्स के लिए उनका 50,000 के अंदर सम अप करके उनका कपल पैकेज की कंसल्टेंसी की फीस लेंगे और एम्बेसी की फीस वगैरह। जबरदस्त हो गया। तो सुभान भाई अब चलते हैं, हम आपके पैकेजेस जो हैं वो लोगों को बता दीजिएगा कि मिनिमम एक पूरी जो है फाइल बनाने के लिए क्या चार्जेस होते हैं? सर एक मिनिमम फाइल बनाने के लिए ना, अगर मैं एम्बेसी की फीस बाहर निकाल दूं तो एक प्रॉपर फाइल बनाने के लिए पर पर्सन जो आपकी वीडियो देख के आएगा उसके 35,000 चार्जेस होंगे। अच्छा। उसके बाद एम्बेसीज की फीस होती है। एम्बेसीज की फीस बेसिकली वैरी हो रही होती है। रिजेक्शन केसेस है तो डिफरेंट है, अगर तो फ्रेश केस है उसके डिफरेंस हैं। हर एम्बेसी की डिफरेंट वैरी हो रही होती है, डॉलर्स रेट पे वैरी हो सकती है, वो एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये, एक और चीज़ मैं आपकी वीडियो के अंदर क्लियर कर दूँ जो भी बैठे बैठे मेरी माइंड के अंदर आई है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि लोग कहते हैं कि आप जो ट्रैवल टिकट्स बनाते हैं, जो डमी ट्रैवल टिकट्स हैं, रिजर्व ट्रैवल टिकट्स हैं, होटल बुकिंग्स हैं, वो 2 नंबर हैं या वो पेड होती हैं? वो पेड नहीं होती, बेसिकली वो रिजर्व्ड होती हैं और एक लेजिट वेबसाइट से रिजर्व्ड होती हैं। उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं होती, किसी भी किस्म की आप समझ लें कि फेक नहीं होती। वो हर बंदे की नई जनरेट होती हैं और रिजर्वेशंस होती हैं। वो एक मैक्सिमम डेट तक उन्होंने बताई होती हैं कि इस डेट से पहले आप पे कर देंगे तो ये कंफर्म हो जाएगी आप, और अगर इस डेट से पहले आप कंफर्म नहीं करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। जबरदस्त हो गया। तो सुभान भाई आपसे रब्ता करने का सबसे आसान तरीका क्या है? लोग आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मोबाइल पे कॉल करें, जरा लोगों को बता दीजिएगा, और अपने जो ऑफिस है इसका भी एड्रेस बता दीजिए। सर मेरे से रब्ता करने का सबसे आसान हल ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, उसका रिस्पॉन्स आपको एज सुन एज पॉसिबल आ जाएगा। ठीक है, जबरदस्त हो गया। जो लोग मुझे कॉल्स वगैरह करते हैं, बेसिकली मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर पाता, मैं कई क्लाइंट्स के साथ बिजी होता हूँ या कई मीटिंग्स वगैरह हो रही होती है, मैं वो कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, जिनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बातें सुननी भी पड़ती हैं। नहीं, हम खुद भी आपके साथ आते हैं तो हम खुद टाइम, आप भी हमें टाइम बताते हैं और हम भी उस टाइम पे ऐसे ही है। मैं कभी किसी क्लाइंट को ये नहीं कहता कि आप डायरेक्ट आ जाए, डायरेक्ट आके जाहिर सी बात है टाइम इज मनी है। अगर उनका टाइम ज़ाया हो रहा है तो मुझे दुख हो रहा है, अंदर बैठे हुए कैबिन के अंदर बैठे हुए मुझे दुख हो रहा है, तो इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि यार आप मेरे से टाइम लेके आएं, कोऑर्डिनेट करें, वो टाइम मैं आपको बताऊंगा, उस दिन आप बेशक आ जाइएगा मेरे पास, उस दिन आपको 1 सेकंड भी वेट नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी एश्योरिटी और गारंटी है। ठीक होगा। और आपका ऑफिस किस जगह पे? मेरा ऑफिस सर निकलसन रोड बिलाल सेंटर G31 नंबर ऑफिस है, लाहौर के अंदर है। और मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर 033441699293। ठीक हो गया। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, सुभान भाई ने उनके लिए बड़ी ही अच्छी ऑफर दे दी है, कपल्स के लिए अलग ऑफर है, और जो फैमिली है उनके लिए, जो उनके चिल्ड्रन हैं वो चाहे 3 हैं 4 हैं, वो सुभान भाई की तरफ से स्पॉन्सर्ड होंगे। ऐसे ही सुभान भाई? ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।